سمندری کی بھی سڑک پہ جناب چونکہ سڑک ہی نہیں ہے تو لوگ کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان جگاڑ کنگ ہے تو الٹی طرف پہ چلاتے چلاتے ہمارے نوجوان کیونکہ نہیں وہ قبر کا سکون جو کھودا جا رہا ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں، وہ تو خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اڑتی اڑتی خبر ہم نے یہ بھی سنی کہ جی پرائم منسٹر صاحب بھی آ رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب پتہ نہیں کیسے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، ہیلی کاپٹر سے آئے ہیں یا شاید وہ جو 10 فرلانگ کا انہوں نے راستہ کاٹا ہے وہ شاید اوور نائٹ سڑک، میری خبر ہے کہ شاید کارپیٹ وہاں پہ بچھ گئی تھی۔ لیکن جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، مطالبہ نہیں کریں گے اور مجھے بندو خان کی سڑک کی اور سمندری کی سڑک کی فوٹیج بھیجیں گے اور میں آ کے آج کہہ رہی ہوں کہ جی آج میں نے اور کوئی نہیں کام کر سکتی کیونکہ میری تو ایک کمفرٹیبل کار میں میری تو کمر جواب دے گئی ہے، تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ ریحام خان ایجنڈا کیا ہے، فیصل آباد کیوں آئی ہو؟ ریحام خان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، آپ نے یہیں رہنا ہے، یہیں اپنے بچوں کو پالنا ہے، آپ کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ کوئی اور آپ کے بچے باہر ملک میں پالے اور آپ کہیں فرار ہو جائیں اور آپ کو 50 روپے کا ہیلی کاپٹر کا پیٹرول بھی کوئی نہیں دے گا۔ آپ لوگ یہاں پہ صحافت کر رہے ہیں، پچھلے 3 مہینے میں بتائیں مجھے کتنے بلین کا قرضہ پچھلے 3 مہینے میں چڑھا ہے؟ 10 تھوڑا ہی سا ہے، کتنے 10.7 بلین میرا خیال ہے، وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں پیچھے، 10.4 بلین، کوئی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کو بلین پتہ نہیں ہے کہ کتنے زیروز ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے، خدا کا خوف کریں، تھوڑی سی رہے۔ کل میں سمندری گئی تو میں نے پوچھا جی سمندری کا نام سمندری کیوں ہے؟ انہوں نے زبردست مجھے ڈاکیومنٹری بتائی اور انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات ہے، میں نے کہا یہاں پہ خواتین آتی ہیں کہ عورت تو نہیں ہے کہ میں آ گئی ہوں، تو انہوں نے کہا جی ہماری تو روایت ہے، یہاں پہ تو ایک پرانی جو ہماری ہیرو ہے وہ بھی خاتون تھی، پٹھانی نام بھی ان کا پٹھانی بیگم تھا، تو یعنی کہ غیرت مند علاقہ ہے، اپنی زمینوں کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو لنڈن پلان یہ ہے ریحام خان کا کہ قوم جاگ جائے، تھوڑی سی غیرت دکھا لیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی ہمت میں نے بھی کر لی ہے۔ تو پھر اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ گھبراتی نہیں ہیں، میں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں واپس آ گئی ہوں تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے، مانگے تو صحیح۔ یہ جو آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے اوپر آشیرواد کسی کا آیا اور وہ فیصل آباد سے الیکٹ ہو کے بچہ منسٹر بن گیا، آپ کا نوکر ہے، آپ کا مالک نہیں ہے۔ یہ بار بار میں آ کے کہوں گی، اگر فیصل آباد نہ جاگا، اگر یہ پریس کلب نہ جاگا تو مجھے نہ کمپلین کریں، میں تو بار بار آ کے آپ کو کہوں گی، آج پیار سے کہہ رہی ہوں، کل آ کے میں باتیں سناؤں گی آپ کو۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے فیصل آباد میں نہیں اپنے بچے پالنے، میں نے نہیں یہاں پہ رہنا، آپ لوگوں نے یہیں رہنا ہے۔ یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی آفت آتی ہے، آج لاہور میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، آج ایک جنگ کی صورتحال بنائی جا رہی ہے، آپ کو مجھ سے بہت اچھا پتہ ہے کہ کیا رپورٹ کرنے کی اجازت ہے اور کیا رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری زندگیاں اس زمین سے جڑی ہوئی ہیں، میری زندگی، میری خوشی اس زمین سے جڑی ہوئی ہے، تو آپ کی تو ظاہر ہے کہ آپ کا تو زیادہ فرض بنتا ہے۔ میں آپ کا جو مسئلہ ہے، یہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، میں نے اپنی کوئی بات نہیں کرنی یہاں پہ، میں آپ ہی کی بات کر رہی ہوں۔ یہ سڑک نہ ہونا، سڑک روزگار دیتی ہے، اور ایک بات صحیح ہے کہ اسلام آباد پریس کلب جس کی بھی یہ جو اوپر والا فلور آپ کا بڑا خوبصورت بنا ہے، بتا رہے ہیں مجھے کہ پچھلی حکومت نے بنا کے دیا ہے، لیکن میں نے جا کے تختی دیکھی ہے، یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تختیاں اچھی لگاتی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ کی تختی اتنی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے دے دیا اوپر، لیکن تختیاں عمران خان کی حکومت بڑی اچھی لگاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب تختیوں سے بڑھ کے ہم کو اپنا جو ایجنڈا ہے وہ
मुतालबा करना पड़ेगा। एहतजाज के अलावा हमको एक मुनज़्ज़म तरीके से अपना हक लेना पड़ेगा। आपकी जान आके कोई नहीं बचाएगा, मेरी जान आके किसी ने नहीं बचाएगी। आपको अपनी जगह भी बनानी पड़ती है और अपना जो हक होता है वो लेना पड़ता है। अगर आप इस तरीके से लोगों के सामने लेट जाएं, तो आपने देखा इस हुकूमत ने क्या किया, बुलडोज़र चलाए हैं, गरीबों के घरों पे बुलडोज़र चलाए हैं और अमीरों के घरों को उन्होंने रेगुलराइज किया है। अगर आपको ये कबूल है तो मुझे बताएं, मैं वापस चली जाऊँ। आप सवाल करें जी, मुझे पता आपने सवाल क्या करने हैं, अपनी बात नहीं करनी, मुझे पता क्या सवाल करने हैं आप। यार एक बात कर रहे हैं आप, एक सेकंड डॉक्टर साहब आप बात मुकम्मल कर रहे हैं जी। You are enjoying very good reputation. So what is your agenda? Have you any positive prediction for Pakistan? You are human rights protector. You are anchor person. You are writer. You have written the autobiography of PM. No, I have not written the autobiography of PM. I have written my autobiography. You are briefing. So very good your speeches. Very जी, good. What is your role? What is your practical role for Pakistan? मेरा जी, बात पूरी कर लेना। मेरा गोल ये है बात पूरी कर लेना। कि मेरा गोल ये है कि मैंने ऑटोबायोग्राफी अपनी ज़ात की और अपनी ज़िंदगी की लिखी और कुछ लोग जो जुड़े हुए थे उनके बारे में भी लिखा। लेकिन मेरा गोल ये है कि मैं बर्दाश्त नहीं करती कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, कहीं कोई गलत काम हो, और उसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक की इस वजह से मेरे ऊपर रहमत है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं हिम्मत कर सकती हूँ, मैं भी तो वापस आई हूँ ना, मैं भी तो वापस आई हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी ऊपर वाले ने लिखी हुई है, मेरा रिस्क ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, ज़मीन पे किसी बंदे के हाथ में नहीं है। और मैं आपको भी मजबूर करूँगी और आपके हक़ के लिए भी लड़ूँगी, आपकी आँख खोलने की कोशिश करूँगी जितना मेरी बिसात है। आपने सुनी हुई बात समझनी हुई, चाहे अगर आपके सवाल का मकसद ये है कि क्या सियासत में आएंगी, अगर सियासत में मैं, क्योंकि आपने नहीं पूछा, असी डायरेक्ट गल करते हैं, तुसी अंग्रेजी में गला करते हो, डायरेक्ट पूछो। अच्छा मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, तो हम एक्टिव सियासत भी करेंगे, हम एक्टिव एक्टिविज्म भी करेंगे, हम एक्टिव आपको इधर सड़क बना के छोड़ के दूंगी मैं। जी बिल्कुल आना चाहूंगी, आपको कोई एतराज है? आप वोट डालेंगे, आप कैंपेनिंग करेंगे? मैडम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप देखें आप प्रेस क्लब में ये टॉक कर रही है, तो हो सकता है हमारी जो कानूनी है वो दे ही ना, मुझे हमें दे ही ना वो। ओ सर, छठो जी, ये जी शिकस्ता वाली, मैं कहती हूँ हाँ जी राणा साहब आप बात करिए, एक सेकंड यार प्लीज। अच्छा मेरा क्वेश्चन बड़ा आपसे ज़ाती से है थोड़ा सा, कि आपके जैसे खदोखाल भी हैं और आप जैसे हम समझते हैं आप साथ से बिलोंग करती हैं, तो लेकिन आप पंजाबी इतनी अच्छी बोलते हैं, बल्कि हम पिछले दिनों हमारा टूर गया खैबर क्लिक के, तो हम आपको स्वाद में ढूंढते रहे कि आपकी शिपिंग मिल जाए वहाँ पर, तो आप पंजाबी इतनी अच्छी बोलती हैं, उसका बताइएगा ज़रा कि उसकी। मुझे लगता है कि मुझ में एक जो है ना, शायद कोई एक पंजाबी जो रूह है वो पिन्हा है। और मैं आपको एक और ज़ाती एक बात बता दूं कि मुझे हमारे सीनियर सहाफ़ी साहब हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जो पश्तून है वो पंजाबी बोल सकता है, और जो पंजाबी है वो अंग्रेज़ी फर बोलता है, लेकिन जो चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है और बुरी भी लगती है वो ये है कि हम पश्तून जो है ना, जहाँ कहीं जाते हैं पश्तो में बात करते हैं, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का पंजाबी है जहाँ कहीं जाता है अमेरिकन अंग्रेज़ी में बात करता है सर। तो बात यह है कि मैंने सरदार कम्युनिटी में, नहीं जी तुसी गल करो ਤੁਹਾਡੀ पंजाबी सुनने वास्ते आए। अच्छा मैडम तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं पंजाबी ज़बान इतनी मैं पसंद भी करती हूँ, और पूरी दुनिया में पंजाबी जो ज़बान है वो अब राइज है, और वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो हमारी सरदार कम्युनिटी की वजह से राइज है। कनाडा में आपने देखा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो बड़ी शान से पंजाबी बोलते हैं, और है तो हमारे ही हैं, ठीक है, लेकिन है तो अपने ही भाई है ना। तो 74 साल पहले तो हम भी साथ ही थे। अच्छा इसी वजह से मैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए कि पंजाबी जब बाहर से हम आते हैं ना,
تو جب آپ پنجابی میں بات کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جب آپ انگلش میں بولتے ہیں تو میں کہتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے انگریزی بھی بول سکتے ہیں. پنجابی سکھاؤ. میں پنجابی پوچھتا تو میں جی پوچھو پوچھو. سب تو پہلے تو تسی ساڈے پریس کلب آئے ہو, ساڈے لو ویلکم. دوسری گل ساڈا فیصلہ آباد ایڈا بھی ماڑا نہیں جڈا تسی کہہ دیتا. نمبر مسائل ہے کہ اپنی جگہ کہ ماڑا میں کہ کیا اتنی بڑی بڑی مالا اتنا بڑی بڑی گڈیاں تے اتنی ٹوٹی پھوٹی سڑکاں. میں تے کہ سونے سونے گبرو جوان تے اتنی بزدلی. میں تے کیا میں تے کہ اتنی 11 دفعہ سانو غیرت دا بھی تانا دیتا, ایک دفعہ تسی بزدل بھی کہتا. اسی ہن توقع کرتے تواڈے کو مطالبہ کرتے کہ تسی ساڈے فیصلے بات میں نیکسٹ ٹائم اپنے پیج تے تسی لاؤ, تسی جا کے ویڈیو ایک بنا کے اپنے پیج تے لاؤ, اسی دیکھاں گے کہ تسی اس کی بات کیتی. خود ویڈیو نا میں تواڈا ویڈیو اپنے فیس بک تے لگا. ٹھیک ہو کہ ڈن ہو گیا. اوکے ہاں بھائی کس کی خبریں, کون سی خبریں؟ نہیں میں ذرائع کون سی یہ بتائیں کہ ذرائع. اچھا دیکھیں میں جمہوریت پسند ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے فیشزم نہیں پسند. تو ہمیں چونکہ میرا صحافت سے تعلق ہے, میں فیصل آباد آئی ہوں, میں واقعی فیصل آباد کی بہت فین ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ادھر جمہوری ووٹ لے لیتے. آپ بتائیں آپ جہاں کہیں گے کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے آپ بتائیں نون لیگ کو جوائن کروں, JUIF کو جوائن کروں, جماعت اسلامی کو جوائن کروں, PTI کو جوائن کروں, سب ووٹ. میں کہتی ہوں, میں ادھر کہہ رہی ہوں, کیمرے پہ کہہ رہی ہوں, آپ جس پارٹی کو کہیں گے کہ جوائن کریں اور جب کہیں گے جوائن کریں. آج میں صحافی کا اشارے کا انتظار کروں. ایک ووٹ لیں گے اور میں بڑی سیریسلی یہ بات کر رہی ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں عزرائیل تفنن کی بات کر رہی ہوں. اگر فیصلہ بات کہے گا کہ نون لیگ جوائن کرے تو ہم اس کو پراپر ووٹ لے کے سوچیں گے. اگر میرے PTI کے بھائی کیونکہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, دیکھیں میں ہمیشہ مسکین اور مظلوم کے ساتھ دیتی ہوں. آج کل PTI جو ہمارے بھائی ہیں وہ واقعی بہت مجبور اور بڑی مسکین حالت میں. ویسے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بہت ایکچولی ان کے بھی ہیومن رائٹس کے لیے میں سوچ رہی ہوں کہ کیمپیننگ کروں, لیکن میں سیریس. آپ جو کہیں گے جو سمجھیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد منسٹر بننا یا کسی کی چاپلوسی کرنا یا کسی کا انفارمیشن منسٹر بننا, کسی کا اسپوکس پرسن بننا نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے کہ اگر مجھے کوئی اتنی اتھارٹی دے دے کہ جی یہ سمندری کی سڑک آپ بنا دیں, یا کوٹ نالی میں پانی دے دیں, یا خانپور میں روزگار دے دیں, مجھے اگر اتنی کوئی دے دے بغیر کسی پوزیشن, بغیر کسی تنخواہ کے, میں ابھی بھی تو کر رہی ہوں. اور یہ میں بڑے آپ کو صدقے دل سے کہہ رہی ہوں, مجھے بالکل کوئی, کیونکہ یہ پرائم منسٹر بنا ہے, اتنا بڑا سیلیبریٹی ہیرو پرائم منسٹر بنا ہے, فائدہ میری نظر میں نہیں ہے. فائدہ انسان کی زندگی میں بس عزت ہی, انسان انٹیگریٹی ہی کماتا ہے. اور اگر اتنا بڑا موقع ملے, میں نے آپ کو کہا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اگر میں اپنے بھائی کی ویڈیو لگا دوں گی اور اس کی فالوئنگ بڑھ جائے گی تو میرے لیے یہ میری خوش نصیبی ہوگی. اگر میں فیصلہ بات کی, اور میں کرتی ہوں, میں نے پرانے لوگوں کے, سینئر صحافیوں کے پرانے آرٹیکلز کو جو پسند کیا ہے واپس ری پوسٹ کیا ہے. آپ خدمت کا موقع دیں, آپ بولیں کہ یہ کرو, اور آپ مجھ سے بھی کروائیں, آپ کا حق بنتا ہے. آپ دے رہے ہیں نا مجھے کوریج, آج آپ سارے آئے, مجھے پتہ ہے کیا مسئلے ہیں. وہ پہلے ڈر گئے ہیں کہ جی کالونی بننی, وہ پہلے ڈر گیا بھائی میرا. اچھا میڈم یہ بتائیں, جو موجودہ ملکی صورتحال ہے, اپوزیشن کے کچھ دھڑے آپس میں مل رہے ہیں, تو اس ساری صورتحال کو آپ جو نون لیگ, پیپلز پارٹی, قبیلہ اور خان صاحب نے آ کر یہاں پر جب کل آئے خطاب کیا تو اس پہ انہیں بڑا تھوڑا سا پین بھی محسوس ہوا. اس ساری ملکی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی حکومت, کوئی بھی لیڈر آف دا ہاؤس یا انکمبنٹ گورنمنٹ تب بالکل کھلی چھٹی سے کام کرتی ہے جب وہاں اپوزیشن نہ ہو. اور پچھلے 4.25 سال میں ہم نے اپوزیشن پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں دیکھی. میں دوبارہ دہرائے دیتی ہوں,
حزب اقتدار سے جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ حزب اختلاف نہیں ہے. اور ہمارا کام یہی ہو سکتا ہے کہ جب ایز اے صحافی یا ایز این ایکٹیوسٹ, آپ کو بھی پتہ ہے یہ بھائی میرا کرے گا اسٹوری, ایف آئی اے پرچہ کاٹ دے گی, میں کروں گی میرے اوپر لیگل کیس ہو جائے گا, یا اڈیالہ کے چکر لگا دیں گے کسی بہانے. لیکن پارلیمنٹ آپ کو امیونٹی دیتا ہے. ہم پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ اپنے پیچھے پروٹوکول, پارلیمنٹ لاجز, کوثار کی کافیاں اور 3+1 شو پہ ایک دوسرے کے ساتھ جگت بازی اور پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنسز کریں یا ٹویٹر پہ جنگیں کریں. یہ ہمیں چھوڑیں. میں ہوں نا ٹویٹر پہ, کسی اور ٹویٹو سلطان کی ضرورت نہیں, نہ پرائم منسٹر کی نہ کسی اور حزب اختلاف کی. میں ہوں. آپ پارلیمنٹ پہ ہیں, آپ پارلیمنٹ پہ بات کریں. منی بجٹ پہ کیوں نہیں بات کی؟ سیپیک اتھارٹی بل پہ کیوں نہیں بات کی؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ کیوں بات نہیں کی؟ میں ہوں یوٹیوب پہ بات کرنے کے لیے. ہم سارے ہیں. ہمیں بلاگر نہیں چاہیے, ہمیں ممبر آف دا ہاؤس چاہیے, ہمیں سینٹ میں پریزنس چاہیے. سڈنلی کوئی بیمار ہو جاتا ہے, سڈنلی کوئی امریکہ چلا جاتا ہے, سڈنلی کسی کا بیاہ ہو جاتا ہے, سڈنلی کسی کی آکسیجن ٹینک ختم ہو جاتا ہے. اسٹریٹجکلی اگر میرا پی ایس انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتا ہے تو آپ اگر بل نہیں پڑھ سکتے جبکہ وہ انٹرنیٹ پہ 4 اکتوبر سے پڑھا ہے تو یہ چیئرمین سینٹ کا قصور نہیں ہے. میں آپ کو اسی بات کی تنخواہ دیتی ہوں کیونکہ ہم ان سب کو تنخواہ دیتے ہیں. اذان سمندر ہی رہتے تھے پہلے. جی سمندر رہتے تھے نہیں. ایک افغان خواتین سے میں نے کہا ہے وہ بات کریں. Wish liख लो. ठीक है आगे.
टीवी चैनल के जो प्रोग्रेसिव हैं मैंने इस्लामाबाद इस्लामाबाद जाना दूर जाना लास्ट 2 क्वेश्चन ले जी जी आपकी गुफ्तगू से हमें बड़ी encouragement मिली है और हौसला मिला है कि आपने कहा कि हर हौसले को खाना चाहिए। जी जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप 3 साल मुल्क से बाहर रही हैं और आप वापस आई हैं। आप 3 साल मुल्क से बाहर क्यों रही हैं? आया आपको कोई थ्रेट्स थी एजेंसियों की तरफ से? अब आप वापस आई हैं तो आपको कोई गारंटी से आई है या आज तक कोई आपको एजेंसियों की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे हैं या आप क्या समझती हैं? मैं जी 3 साल पहले जब गई तो ज़ाहिर है सब लोगों को बहुत चेमगोइयाँ थी, कुछ इसी शहर से ज़्यादा नॉलेज थी, खुदा जानता है कैसे नॉलेज थी, लेकिन उसकी वजह से थोड़े से मसले बने। किताब लिखने की वजह से मुझे 2017 में बड़ी साफ अल्फाज में बताया गया था कि वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है और इमरान खान के बारे में बात जो कोई भी करेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। और मुझे डायरेक्टली थ्रेट्स मिली, इनडायरेक्टली थ्रेट्स मिली, मेरे स्टाफ को मिली, मेरी फैमिली मेम्बर्स को मिली, मेरी बेटियों के हवाले दे दे के धमकियाँ मिली। लेकिन जब डेथ थ्रेट्स मिली तो आपको पता है जर्नलिस्ट को डेडलाइन जब मिलती है तो ज़रा ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर वाकई में मुझे कुछ हो गया तो ये कहानी तो कोई किसी को नहीं बता सकेगा, और अगर पहले कभी किसी ने कोई किताब लिखी होती तो शायद मुझसे भी कोई ज़ाती गलती ना होती। तो मैंने फिर किताब लिखी और यही बेहतर समझा कि मैं अपनी फैमिली को, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मैं बाहर ले जाऊं। आपने देखा होगा मीडिया में कि यूके में भी हमारे पीछे बच्चों के प्ले ग्राउंड्स में भी, बच्चों के खेल कूद के मैदान में भी लोगों को भेजा गया, और कुछ चीज़ें खुद वीडियोस पे वायरल की गई, कुछ चीज़ें हमारे साथ ज़ाती तौर पे हुई जो कि तकलीफ देह हैं। ज़ाहिर है ये फ़ैसला या ये जो जंग है ये मेरी अपनी है, मेरी अपना इंतखाब है, और उसकी वजह से अगर मेरे बच्चों को इफ़ेक्ट उसका आए, ये ज़ाहिर है मेरे लिए तकलीफ देह बात है और नाजायज़ और नाइंसाफ़ी वाली बात है। लेकिन मेरी जो छोटी साहबजादी हैं अब वो इस इतनी बड़ी हो गई हैं कि मैं उनको छोड़ के आई हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि हम कभी इस तरह फैमिली से जुदा नहीं हुए। लेकिन मैं पिछले जुलाई से आने की कोशिश कर रही थी और कोविड के कुछ मसाइल थे, कोविड वैक्सीनेशंस के भी कुछ मसाइल थे। वहाँ यूके में ऐसा नहीं होता, यूके में सबको बराबर ही ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आप अगर कोई नाम अपना इस्तेमाल करके और पहले वैक्सीनेशन लगा लें। लेकिन लोगों ने मुझे बड़ा मना किया और यही कहा कि सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है। मुझे पता है कि सेफ़ नहीं है, मुझे कोई एश्योरेंस नहीं मिली, कोई डायरेक्ट एश्योरेंस नहीं मिली किसी से। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे इनडायरेक्टली ये कन्वे किया गया कि सब बहुत तंग है, और आप सबको भी पता है कि वो सारे जो लाए हैं वो भी तंग हैं। लेकिन मेरा अपना मुल्क है, मैं अपनी खुशी से पहली बार भी आई थी, अपनी माँ की मोहब्बत में आई थी। मैंने अपनी वालदा को यहाँ पे दफनाया हुआ है, मेरे वालिद साहब यहाँ पे दफनाए हुए हैं, और मैं अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी है पूरी कर चुकी हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी ड्यूटी निभाई है अपनी फैमिली की, और अब मैं समझती हूँ कि मेरी एक फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, जो कि जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने बेटों का, बहनों का, भाइयों का हक निभाया। और मेरी बड़ी खुशनसीबी है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि लोग मेरा इंतज़ार करते हैं और मेरे लिए दुआ करते हैं। मुझे ये भी पता है कि चूँकि पाकिस्तान में लोग झूठ बोलने के और झूठ सुनने के इतने आदी हैं, फरेब देने के और फरेब खाने के इतने आदी हैं कि आपको हमेशा लगता है कि लंदन प्लान है। मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं होगा यकीन, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए मेरा मकसद नहीं है। मैं आई हूँ, रहने के लिए आई हूँ, और जो कुछ भी मुझसे हो सका, चाहे उसका मतलब यह है कि किसी एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है, किसी सियासी पार्टी का हिस्सा लेना है, या हमें कोई
एक्टिव रोल जर्नलिज्म के लिए करना है, कोई एक्टिविज़म करनी है, वो मैं करूँगी। दूर बैठ के मुझे लगा कि थोड़ी सी मुनाफ़कत है कि पाकिस्तान में, और आप यकीन माने कि मुझे पता था कि हालात कितने मुश्किल हो गए हैं, लेकिन जब मैंने आके अपनी आंखों से देखा है तो यकीन नहीं आता कि इतना बिगाड़ा गया है। तो मैं इसीलिए आई हूँ। मुझे कल इन्होंने जब लोगों ने पूछा कि वो समंदरी, यकीन नहीं आ रहा कि समंदरी आई हैं, कि समंदरी क्यों आएंगी। मैंने कहा मैं इसीलिए आई हूँ कि आपको यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि लोग नहीं आते समंदरी, इसलिए मैं आ रही हूँ। मैडम जैसा कि आपने तस्करा किया कि पहले तो आपको थ्रेट था जी हुकूमत की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, क्या आपकी थ्रेट खत्म हो गया? दूसरा ये है कि शुनीद ये आ रही है कि आप पीटीआई की जो है प्लेटफॉर्म उस पे जो है उससे इलेक्शन में आ रही हैं और आपको सियासी एक्टिविटी के लिए कहा है। मुझे किसी ने नहीं कहा, और वो इस वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि जो लोग पहले मुझे कहते रहे हैं उनको पता है मैं बात उनकी नहीं सुनती। मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी और अपनी मर्ज़ी की है। तो मुझे ये आपसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे बड़ी खुशी हो अगर पीटीआई मुझे चाहे कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं, बिकॉज़ मैं जेन्युइनली ये समझती हूँ कि पीटीआई के जो एक्चुअली कोर मेंबर्स थे या जो जेन्युइन पीटीआई थी उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। जो आप काबीना में आप देख रहे हैं ये पीटीआई नहीं है, ये मुशर्रफ की बाक़ियात हैं, पीपीपी है। तो लगता है कि ज़रदारी साहब अगर कल को वज़ीर आज़म बन जाए तो उनको कोई ख़ास रद्द बदल करने की शायद ज़रूरत ना पड़े, शायद वो भी सीख गए हों, शायद वो भी अपने उन लोगों को ना रखें, लेकिन ये पीटीआई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी पीटीआई अब होगी वो पीटीआई तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा है, आज भी ये कहती हूँ कि पीटीआई इमरान थी, इमरान पीटीआई था। इट वॉज अ वन मैन पार्टी, एक शख्स के लिए बनाई गई, एक शख्स ने अपने लिए बनाई, और वो मेरा ख्याल है कि उसका फ्यूचर नहीं है, ना इमरान की सियासत का फ्यूचर है। हाँ, आप मुस्तकिल उनको 10 साल किसी भी एक्सक्यूज़ के तौर पे बिठा सकते हैं, उस तरह तो बड़े और ममालिक में 50-50 साल लोग बिठाते हैं, बड़े लोग जो बिठाने वाले हैं वो बिठाते हैं, लेकिन सियासत नहीं हो रही, ये सियासत नहीं है। क्या आप मुफ्ती कश्मीर को सहारा देने के लिए आई हैं? मैं जी पीटीआई ने तो जो अगर बराए नाम जो पीटीआई है वो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साफ बात जो है, मैं समझती हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आना एक पार्लिमानी बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है। मसला इस वक्त ये है कि नो कॉन्फिडेंस पे तो सब राज़ी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस किस में है इस पे राज़ी नहीं है, और ये बड़ा सबसे इशू है कि जब आप अदम एतमाद की मूवमेंट लाते हैं फिर आपको ये बताना पड़ता है कि एतमाद किस में है, और ये अगर पीडीएम डिसाइड कर ले तो ना मैं नजूमी ना मैं पीर, और फिर अगर मैं कोई बात करूँगी तो कहेंगे कि जी आप गैरत दिलाने के लिए आती हैं। मैं तो जो बात जायज़ है वो करूँगी, जब तक डिसाइड आप नहीं करेंगे कि एतमाद किस में है। मैडम आपने पहले भी न्यू चैनल ज्वाइन किया जी जी, तो क्या अब हम समझें कि इस दफ़ा भी आप कुछ इस सिलसिले को जोड़ेंगी या फिर अपनी आप सियासत नियो चैनल से कहें कि रब्ता करें। मेरा ख्याल है कि आपने देखा अभी कैसे माइक, ज़रा मैं कोई ख़तरनाक बात करती हूँ तो इधर से माइक उठा के भाई साहब भाग जाते हैं। बात ये कि मैं एक्चुअली उस तरह से टीवी चैनल्स की बातचीत चल रही है, काफ़ी अरसे से चल रही है। मसला ये कि जाहिर है कि हुकूमत के इश्तिहारात रोकने से लोग डरते हैं, साफ बात ये है, और शायद ये आप बात ना चला सकें, और मैं समझती हूँ ये मसला। हाँ जी खबर साहब जी आइए फिर मेरे खिलाफ बातें करें। आपके खिलाफ नहीं, आपके हक में बात की है। ऐसा है कि आपको खातून और अपनी बेटी पैदा होने का हमें प्रिविलेज दिया कि हमने लफ्ज़ गुज़री भी सुन लिया है, कोई मसला नहीं है। तो ये है कि ऑन दी फॉर्म ये लफ्ज़ हमारी काफ़ी वज़नी लगा है, गुज़री कि हमने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं। हमने अपने मसाइल के हवाले से जो कुछ कहा नहीं वो ऑन दी रिकॉर्ड है, ऑन दी मीडिया में, वो एक अलग बात है। मेरा आपसे एक सवाल है, एक तो आपकी किताब के बारे में जी, कल मैं बता दूँ तो हमारे पास मेरा नाम है शायद साहब की तरफ से, मैं प्रेस क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर पर्सन खबर के लिए अर्ज है कि जी आपकी जो किताब है वो उसको मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा शेर और नशे के ताल्लुक है। मैं कहता हूँ कि जो किताब होती है ना एक सहीफा होती है, किताब एक सहीफा होती है जी, उसमें जो दस्तावेज जो मवाद होता है जो वो एक बड़ी अहमियत का है। तो मैं उसको इस किताब को अदब की किस मुकाम पे है
क्या अदबी रमूज़ व अकाब को कितना मद्देनजर रखें, वो उस हवाले से बात करो मैंने किताब। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम हमें ये इस चीज़ का पाबंद बनाता है कि हदीस मुबारक में भी है कि मुसलमान को है। तो ये जो किताब है वो उस बात को मैं अलग रखता हूँ, तो मजहबी वाले से बात हो जाएगी कि किसी की आपको छुपाना हमारे का भी होना, लेकिन उसमें जो लफाजी है, जो अल्फाज है, ग्रामर के हवाले से लगा लें, अल्फाज के हवाले से लगा लें, आया बहुत ज़्यादा जिस तरह कोई बंदा अपने ज़ाती इंतकाम की हवाले से कोई तहरीर लिख रहा हो, और किताब जो हज़ारों साल जिंदा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ज़ाती जिस तरह कोई ज़ाती ताज़ा कोई केस लगी है और हमने अल्फाज को इतना रफ कर दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने किताब पढ़ी है? आपने किताब पढ़ी है? आपने किताब पढ़ी है? नहीं, मैंने आपसे पूछा आपने किताब पढ़ी है? इन्होंने सुनी है। नहीं, मैंने आपसे पूछा, मैं भी सहाफ़ी हूं, आपने किताब पढ़ी है? नहीं, आपने मेरी किताब पढ़ी है? पढ़ी है? कितने सफ़ात हैं बताइए, कितने सफ़ात हैं? नहीं, मैं सिर्फ पूछूं कितने सफ़ात हैं? नहीं, मैं सिर्फ पूछूं, यार एक सेकंड क्या हो गया? हुजूर आपने किताब पढ़ी है? आपने वैसे मेरी बात का जवाब दे दिया, खुद जवाब दे दिया, इसलिए कि हुजूर जो बात आप जिस तरफ इशारा दे रहे हैं, जिस शख्स का नाम ले रहे हैं, जो वाक़या कह रहे हैं, वो मेरी किताब में नहीं लिखा हुआ। बस साबित हुआ कि आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी, वहाँ पे वो मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दूँ। पहली बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से और अपनी उसूलों से और अपनी वैल्यू सिस्टम के साथ जीने का तहिया किया है, और मैं समझती हूँ कि मेरी नज़र में, वैसे ये सवाल मुझ पे बनता नहीं, आपको किसी और से पूछना चाहिए, किसी ने जिसने किताब पढ़ी हो, जिसने रिव्यू किया हो। मुझे जो लोग पाकिस्तान से नहीं जुड़े हुए, जो लोग PTI से या जनरली पाकिस्तान से नहीं जुड़े हुए, जिन्होंने किताब पढ़ी है, और जो इमरान खान को नहीं जानते और जो रिहाम खान को नहीं जानते, मतलब एक खातून का मुझे कोट आया, आप देख भी सकते हैं, गुड रीड्स पे उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो अमेरिकन है तो उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा जिस टेनिस प्लेयर के बारे में लिखी है, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेला जाता। बिलीव इट और नॉट, कुछ ममालिक में इमरान खान को नहीं पहचाना जाता, और वो मुझे भी नहीं पहचानते, और उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा हुआ था, शायद सिर्फ कवर पे देखा हुआ। उन्होंने जब किताब पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये किताब किसी भी पेरेंट के लिए, किसी भी फैमिली सोसाइटी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने ये किताब एक्चुअली किसी के लिए ख़रीदी थी, पर मेरी वालदा बीमार हो गई और वो ICU में थी और मेरी फ़्लाइट डिले हो गई, तो मैंने किताब जो गिफ्ट के लिए खोली थी, क्योंकि दुबई में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने वो पढ़ना शुरू की और मैंने एक दोपहर में वो किताब पढ़ ली। मकसद यह है कि किताब मैंने वैसे कोई अदीब और कोई लिटरेरी अप्रूवल के लिए नहीं लिखी थी। मैंने आपको बताया, धमकी मिली और मैंने कहा ये बात मैं अपनी ज़िंदगी में और बाकी लोगों की ज़िंदगी में लिख दूँ, चाहे तो मुझको कोर्ट ले जाए, चाहे तो चैलेंज कर लें, चाहे तो ले जाएं, लेकिन वो किताब मैंने हीरो बनने के लिए, आपके फूल गुलदस्ते रिसीव करने के लिए, कोई पोजीशन लेने के लिए, माल बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल किताबों में कोई ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, मैंने फ़र्ज़ के तौर पे लिखी। आप जो कह रही हैं कि किसी के ऐप पे पर्दा डाला जाए, अगर कोई किसी के साथ, मेरा मानना ये रिहाम खान की सोच है, मैं अपनी सोच से ज़िंदगी गुजारती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर किसी से कोई ज़ाती तनाज़ा हो या कोई ज़ाती ब्रेकअप हो जाए या किसी दुश्मनी हो और किसी तीसरे शख्स की सेहत पे, ज़िंदगी पे उसका असर ना हो, तो उसको नहीं बताना चाहिए। वो इंतकाम हुआ, वो गुस्सा हुआ। मैंने बड़े ठंडे दिमाग से इस वजह से लिखी कि जिन लोगों का जिक्र किया है, एक डोमेस्टिक वायलेंस की बात की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला दुनिया में है। दूसरा मसला, जिस शख्स की आप बात करें जो आज प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे है, वो इसलिए लिखी क्योंकि
22 करोड़ अवाम के अलावा अफ़गानिस्तान, इंडिया, टर्की, मतलब पूरे खत्ते में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जो बैठा होता है उसकी बिहेवियर, उसकी डिसीजन मेकिंग उसको अफेक्ट करती है। और मैंने बड़ी नेक नियति से अपनी समझ के मुताबिक, इंसान हूँ, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन अपनी समझ के मुताबिक ये सोचा कि लिख डालूँ इससे पहले कि कोई मुझे मार डाले। आपको पसंद ना पसंद आना आपका हक है। हाँ जी सबूर भाई, सबूर सर। आप बच्चों को लेकर मुल्क से बाहर चले गए, वहाँ अपने बच्चों को सेटल किया और आप वापस लौटे हैं। यहाँ पे आके आपने फैसलाबाद में टूटी सड़कों को सहाफती गैर से करते हुए इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है कि हमारे भी बच्चे हैं, क्या चाहते हैं कि हम कलम छोड़ के जाके नुमाइंदों के घरों का घेराव कर लें, या क्या एजेंडा है, क्या आप इस्लाम की आ रही है? प्लान मेरा ये है बड़ी सिंपली कि वैसे मैंने इश्तियाल बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन इस पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे अगर मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूं कि आप उठ खड़े हो एहतजाज के लिए, तो हम पहले भी डी चौक में किसी और वजह से एहतजाज करते रहे, इस पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि जो यहाँ पे इन्वेस्टर है, मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको उसका हक बनता है कि वो मुतालबा करे, क्योंकि आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं, आपको कहते हैं जलसे के लिए पैसे निकालें, आपसे फ्यूल मांगते हैं। मुझे पता है, मेरे आंखों देखा हाल है, आपका हक बनता है आपके लिए सड़क बना के दें, क्योंकि मैंने कहा कि जो पार्लियामेंट में बैठा है वो आपका नौकर है, आप उसके नौकर नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं, आपकी तनख्वाह पे है वो। मैं सहाफ़ी बरादरी को मैंने ये कहा कि ये ज़्यादती है कि आपके सर पे छत नहीं है, आपका हक बनता है। फिर अगर सहाफ़ी को कहें कि जी लिफाफी है या रिश्वत लेता है, अगर कोई पटवारी 43,000 43,000 रुपीज़ 18 साल की सर्विस के बाद कमाता है, फिर क्या आपका बनता है कि आप कहें कि जी ऊपर की कमाई करता है, कि उसने अपने बच्चों को नहीं पालना? मैं आपको जिहाद करने को नहीं कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आपका हक बनता है वो आपको मांगना चाहिए। जैसे फैसलाबाद मेरा हक बनता है, कल मुझे किसी ने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा तो कहने लगे जी सिक्योरिटी का मसला। मैंने कहा मेरे बाप दादा का भी मुल्क है ना, हु इज़ गोइंग टू डिक्टेट कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या बोलूँ? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपने बच्चों को जाके, मैं तो इसी की बात के खिलाफ हूँ, मैं तो कह रही हूँ आपके बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है, और मैं क्या सजेस्ट कर रही हूँ आप मुझे बताएं। मैं रेहाम खान आपके तरफ से पिटिशन डालती हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट है ना, मैं वापस जाके आपके हक से अपने को पिटिशनर बना के हाई कोर्ट में पिटिशन डालती हूँ। आप मुझे बताएं कहाँ डालूँ? मैं सहाफ़ी कॉलोनी के लिए पिटिशन डालूँ, पब्लिक इंटरेस्ट है, मैं आपकी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के लिए डालती हूँ, ना खड़े हो आप मेरे पीछे। मैं किसान के साथ जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, मैं आई हूँ वापस। मैं क्यों वापस आई हूँ? क्योंकि मैं ट्विटर पे ब्लॉगिंग कर करके मैं आपको बताऊँ, आपको मैं ये रिकॉर्ड पे कह रही हूँ, मैं अपने जो इधर उधर पैसे हम लगा रहे हैं, मैं आपके हक पे पिटिशन दायर करूँगी, खुद पिटिशनर होंगी, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका हाई कोर्ट में। आप बताएं किस हाई कोर्ट में करूँ? ना किया तो आप मेरा गला पकड़े, और ये आपका हक बनता है, ये मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन अगर मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे होंगी तो ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है ना, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, और मैंने फ़र्ज़ वो अदा किया है जिसके लिए मैं सुन रही हूँ कि क्या आपको करना चाहिए था। मैं समझती हूँ मुझको करना चाहिए था, मुझे पता था, मैं आई विटनेस हूँ, लेके जाएं मुझे कोर्ट, बताएं, मैं आई विटनेस हूँ, मैं कह रही हूँ, मैंने लिखा है, आई ओन इट, फ़र्ज़ बनता था मेरा। अभी वज़ीर आज़म की तरफ से जो बेहतरीन अवार्ड दिया गया मुख्तियार को दिया गया, क्या अवार्ड दिया गया है? मुख्तियार को एक बेहतरीन अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये मेरी इत्तला में नहीं। इनकी कारकर्दगी सबसे अच्छी रही है। अभी आज मुराद से इनको नहीं दिया गया, खुसरो बख्तियार को भी दिया। आप इस वक्त आटे की कीमत देख लें तो गुड लुकिंग तो वो भी है वैसे, इस वजह से अवार्ड दिया गया, ये बताइएगा। मेरी तो ये इत्तला में नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे अवार्ड्स मैं क्या कुछ और बोल दूंगी, फिर वो भी पकड़ा जाएगा, फिर कहीं जी इस्तेमाल। लेकिन अवार्ड से बादशाह लोग हैं जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे किसी को बिठा सकते हैं, जो मिनिस्टर बना सकते हैं, जो मुराद सईद को मिनिस्टर बना सकते हैं, खुसरो बख्तियार साहब को भी बन गए वो सीएम, वो साउथ पंजाब, वो क्या है उसको क्या कहते हैं, जनूबी पंजाब महाज है, वो जिंदा है, पता नहीं, हो सकता है इस बात का अवार्ड मिला हो कि जी आप लोगों को एक वादा करते हैं और मेरी तरह यू टर्न ले लेते। आई सपोज कि यू टर्न का अवार्ड मिल सकता है,
اور کمیونیکیشنز بھی میرا خیال ہے سڑکیں بھی شاید مراد سعید صاحب بھی کہ وہی سڑکوں کی کا رونا رو رہی ہوں. تو میرا خیال ہے ایوارڈ تو بنتا ہے. اگر پرائم منسٹر کے ساتھ میچنگ ان کی کابینہ ہو تو پھر تو ایوارڈ بنتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کو بھی اعلیٰ کارکردگی کا کوئی نہیں ملا. میں ہوتی تو ان کو سب سے پہلے دیتی. فائنل ایک کویشچن لیں گے خواتین سے, چونکہ ہم نے بات نہیں کی. نہیں, وہ کہتی تو صحیح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں موسم کا حال بھی بتاتی رہی ہوں. میں ٹافس ٹرین میٹرولوجسٹ رہی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہاں سونامی جو انہوں نے لفظ اپنے لیے انتخاب کیا ہے بالکل صحیح ہے. سونامی تباہی لاتی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ بھی موسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ویسے بھی وہ ماحول سے جڑا ہوا ان کا پورٹ فولیو ہے, تو وہ میرا خیال ہے وہ پورٹ فولیو ان کو بڑا سور کرتا ہے. ماحول تو وہ بڑا زبردست بناتی. بہت بہت شکریہ جی. میں معذرت کے ساتھ میں بالکل آپ کے سوالات اور بھی لیتی حاضر ہوں. میں نے واپس گھر پہنچنا ہے. جی جی جلدی ایک منٹ یار, ایک منٹ. ہاں جی کریں سوال کر رہے ہیں. انڈیا کے اوپر جو بچی کے اوپر جو ہوا ہے وہ میں نے بڑی تفصیلاً کل جواب دیا تھا. ایک صحافی نے سمندری میں مجھ سے پوچھا تھا, اور میں آپ کو میری کوئکلی بتا دوں کہ عورت کے لباس کو قصوروار ٹھہرانا وکٹم بلیمنگ ہے, اور میرا اس کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ لڑکی کا قصور نہیں ہے. ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ عورت جو لباس پہنے اس کی اجازت ہونی چاہیے. تو فیشزم ہے انڈیا میں, آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.